Hello everyone, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psychic by Tanya. So the upcoming board exam is of economics, and one of the biggest reasons why students lose marks in economics is not because they do not know the answer, but because they do not know how to structure their answer well. So in this video, I will be telling you how do you actually present your answer in your answer sheets, including all the graphs, diagrams and whatever is required for the examiner to evaluate your answer sheet so that you do not lose on any single mark. Okay, so without any further delay, let's begin with the video. Okay, so all your answers, majorly long answer questions, should follow a particular structure, which is first of all define the concept being asked about in the question. If it is asking you about inflationary gap, first define inflationary gap, tell how do you identify it, what does it represent, and then next step should be to give its diagram, to give a graph representing inflationary gap in a situation. So the first step is to define a concept well, tell its variables and whatever is included in it. Then tell about the graph which is used to represent that particular concept, or a diagram which maybe tells the functioning of that concept. If it is about investment multiplier, how does an investment multiplier work? You should show it with the help of a flow chart, with the help of a diagram. Okay. And then third should be any example or explanation for the graph or the diagram which you have made. You can explain your diagrams and graphs with the help of an example. You can use a schedule to actually present how do you actually represent a concept. Okay? And then lastly, conclude your answer in relation to the question asked and in relation to whatever you have told before in your answer. Okay? To conclusion kar do. First is to define, then diagram, then explain the diagram or the graph, and then lastly conclude your answer. This is the structure which you have to follow throughout. Now here I have a PDF of a few questions which I'll use to refer and explain how do you actually have to present your answers. Okay? So here is it. I'll read out the questions and you'll find the link to the PDF in the description box below, जो मैं अभी use कर रही हूँ. And if you want more such questions, go to my Instagram handle, text me there that I want questions which you have told कि आपके पास हैं. अब I have more similar questions. I have an app where you can find more similar questions and a lot of good resources. So text me there. I'll surely share the link to the app also and also the PDFs which I have. Okay, and also I'll be looking for some more resources if I can provide, and I'll provide them under the description of next videos which I'll upload. Okay, so here is the question. Explain the determination of equilibrium exchange rate in the foreign exchange market. Now this is a long answer question but a very direct question. What does it ask you? It is asking how do you determine an equilibrium exchange rate in your foreign exchange rate system. So first of all, first step here is to tell the definition of foreign exchange rate. उसकी बात हो रही है यहाँ पे. पहले बताओ foreign exchange rate क्या होता है, फिर बताओ उसमें equilibrium कब आता है. How do you say a foreign exchange rate is an equilibrium? ठीक है, तो वो चीज़ बताओ. तो दो डेफिनेशंस आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी, पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट की एंड देन इक्विलिब्रियम की. देन एक डायग्राम के थ्रू समझाओ कि ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है. फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन करो, मे बी यूजिंग एन एग्जाम्पल और मे बी जस्ट थ्रू द डायग्राम, एंड देन फाइनली कंक्लूड योर आंसर. वैसे यहाँ पे कुछ केस स्टडी इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बिना कंक्लूड करे भी चलेगा. यू कैन जस्ट राइट सो दिस इज हाउ इफ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट देन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी कंक्लूड किया जा सकता है. बट इफ इट इज़ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देन ट्राई एंड रिलेट इट टू द क्वेश्चन फर्स्ट, रिलेट इट टू द केस फर्स्ट एंड देन कंक्लूड. ठीक है, तो हियर इज हाउ दे हैव रिटन द आंसर हियर. Okay, foreign exchange rate is determined where demand for foreign exchange curve and supply of foreign exchange curve intersect each other. First they have told rate कैसे determine होती है. जब demand और supply intersect करते हैं एक दूसरे को तब वो rate determine होती है. And now they will tell what is an equilibrium of exchange rate. ठीक है, in other words, the equilibrium exchange rate is determined at a level where demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. ठीक है, जितना आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है उतनी ही उसकी सप्लाई है. जब वो इक्वल हो जाते हैं देन दे आर इन अ इक्विलिब्रियम. So and then they have showed it in an equation that foreign exchange equilibrium foreign exchange rate is equals to demand of foreign exchange is equals to supply of foreign exchange. ठीक है, so here this has been explained with the help of a schedule and a diagram. Now they have also provided a schedule and a graph जो तो बनाना ही था. तो अब इन्होंने schedule कैसे दिखाया है. They have showed dollar price in rupees,
डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन मिलियंस. यहाँ पर PDF ओपन कर लेना साइड में, सो दैट यू कैन लुक एट द आंसर साइड बाय साइड एज आई एक्सप्लेन. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन मिलियंस, कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, ये 5 चीज़ों की इन्होंने टेबल बनाई है. नाउ फर्स्ट दे हैव टोल्ड कि $1 की प्राइस अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ क्या है, 68 रुपीज़. 68 इंडियन रुपीज़ मेक $1. नाउ इन दिस प्राइस डिमांड फॉर डॉलर्स इज 500 मिलियन. कितना है, 500 मिलियन डिमांड है एंड सप्लाई सिर्फ 100 मिलियन है. सो दिस इज़ अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड. देन नेक्स्ट, जब हमने प्राइस बढ़ा दी डॉलर की, बेसिकली हमने 68 से 69 रुपीज़ मांगने लग गए फॉर $1. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वी विल रिड्यूस द डिमांड, क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ रही है तो हमें डिमांड कम करनी पड़ेगी एंड देन सप्लाई बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर क्या होगा, 500 से डिमांड आ गई 400 पे एंड सप्लाई 100 से चली गई 200 पे, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस आ गया. ठीक है, व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड सप्लाई इंक्रीजेस. ओके, but again here also in this situation also demand is 400 and supply is 200. Again it is a case of excess demand, so यहाँ पे भी excess demand है. Then next they increase the price by 1 more rupee, which is 70 rupees for $1. Now here again the demand will fall, which is it will fall to from 400 to 300 million, and then supply will rise from 200 million to 300 million. Now do we see that they are equal here? 300 million ही demand है, 300 million ही supply है, and they are forming a equilibrium. So this is where we determine ना excess demand है ना excess supply है, and यहाँ पर equilibrium rate है. तो दिस इज़ आर इक्विलिब्रियम. बट यू कैन नॉट स्टॉप हियर, आपको एक्सेस सप्लाई का भी स्केड्यूल देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेस डिमांड का दिया, इक्विलिब्रियम का दिया, एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन भी तो आएगी. नाउ दे आर सेइंग अगर हम और बढ़ाते हैं प्राइस, अब इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है 70 पर, अब अगर मैं करती हूँ प्राइस 71 या 72, तो डिमांड तो क्या होगी, और कम होती जाएगी, 300 से 200 एंड 100 हो जाएगी एंड सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, वो 400 500 रीच कर जाएगी. दिस विल बी अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, क्योंकि डिमांड तो कम होती जा रही है प्राइस बढ़ने की वजह से एंड सप्लाई बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो इन्होंने ऐसे करके प्रॉपर इसको टेबल में ही एक्सप्लेन कर दिया. बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू एक्सप्लेन इट इन अ टेबल, और आएगा भी नहीं इतना आंसर शीट में, सो व्हाट यू कैन जस्ट डू इज़ शुरू के जो 3 कॉलम्स है वो अपनी आंसर शीट में बनाओ एंड जो इन्होंने इफेक्ट बताया है उसको एक्सप्लेन करो नीचे. ठीक है, इन रेफरेंस टू योर स्केड्यूल उसको एक्सप्लेन करो कि दिस केस शोज एक्सेस डिमांड, दिस केस शोज दिस शोज इक्विलिब्रियम एंड दिस शोज एक्सेस सप्लाई. दिस इज हाउ इट वर्क्स. देन आपके पास आ जाता है डायग्राम अबाउट व्हाट द एक्चुअल क्वेश्चन वाज कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है. तो इन्होंने उसका डायग्राम बता दिया है, एक्सेस डिमांड दिखा दी, एक्सेस सप्लाई दिखा दी एंड बीच में ई पॉइंट है वो मार्क कर दिया इन्होंने एज इक्विलिब्रियम. नाउ अब इसी ग्राफ की इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी साइड में. इन द गिवन ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस वी हैव डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, एक्स एक्सिस पे इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई रखा है एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रेट. पहले इन्होंने बता दिया इन्होंने क्या वेरिएबल्स कौन से एक्सिस पे लिए हैं. ठीक है, डी इज़ द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, जो ये डी है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज योर डिमांड slope and then SS is your supply slope, supply curve. ठीक है, demand is downward sloping and supply is upward sloping, we all know. Both the curves intersect each other at point E, which shows equilibrium. The foreign exchange rate is determined at OR, which is 70 rupees, which is the equilibrium rate of exchange, and the equilibrium quantity demanded is 300 million. 300 million की demand और supply पर decide हुई है and price rate क्या decide हुई है, 70 rupees. ठीक है, तो दिस इज हाउ दे हैव प्रिसाइजली एंड वेरी एक्यूरेटली टोल्ड द एंटायर आंसर, है ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, गिविंग रीजन, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. प्रीटी सिमिलर बट वेरी स्टिल देयर इज अ लॉट टू टेल हियर. अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहले तो फॉरेन एक्सचेंज बता दो कि होता क्या है. व्हेन यू एक्सचेंज योर मनी इन टू डिफरेंट करेंसीज, लेट्स से. ठीक है, ऐसे करके तुम बताओ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है एंड देन यू डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट. अ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर. Thus, an exchange rate can be regarded as the price of one currency in terms of another. Okay, so an exchange rate indicates external purchasing power of money.
It is also regarded as the value of one country's currency in relation to another currency. अब एक ही चीज़ को इन्होंने 3-4 तरह से डिफाइन कर दिया, बिकॉज इफ सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड 6 मार्कर, आपके पास एक ही डेफिनेशन बताने के लिए बहुत तरीका नहीं है, एंड दे हैव नॉट आस्क्ड मच अबाउट इट, सो यू हैव टू टेल वन थिंग बट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट रेफरेंसेज. ठीक है. And then they have told there are 2 methods of foreign exchange rate determination. Then they have explained that. And they have told कि आजकल gold standard mechanism नहीं चलता है because we do no longer exchange in terms of gold. And yeah, and then they have told that how does the demand for foreign exchange generate. They have told then when Indian people and business firms want to make payments to the US nationals, or they want to buy US goods and services, or to give gifts to the people, लाइक एनीथिंग रेसिप्रोकेटिव है कि उनको हमें कुछ गिफ्ट या कुछ हमसे बिजनेस अलायंस करनी है, हमें उनसे कुछ करना है. दिस इज हाउ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ठीक है. द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. इन्होंने उस तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ दे हैव शोड द रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, विच वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. There is an inverse relationship between the foreign exchange rate and the demand of foreign exchange. With the rise of foreign exchange rate, demand falls. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो डिमांड कम होती चली जाती है, वाइस वर्सा जब प्राइस कम होती चली जाती है तो डिमांड बढ़ती चली जाती है. ठीक है. इसी चीज़ को इन्होंने थ्रू अ स्मॉल डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है. यू कैन सी. लाइट क्यों आ रही है इतनी. यस, अब ठीक है ना. बाकी PDF में देख लेना. ठीक है. इन द अबव फिगर डी कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी when the exchange rate is high, which is R1, तो डिमांड कम है. ठीक है. एंड देन व्हेन द और क्वांटिटी भी कम आपकी डिमांड हो रही है, ऑब्वियसली अगर डिमांड कम है तो क्वांटिटी भी कम ही है. एंड देन R2 जो कि सेकेंड रेट है विच इज़ लोअर, उस पर डिमांड ज़्यादा है एंड वहाँ पे क्वांटिटी भी ज़्यादा डिमांड हो रही है. ठीक है. द डिमांड कर्व फॉर द फॉरेन एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप्ड एंड सिग्निफाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड एक्सचेंज रेट, दैट इज प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. गॉट इट. Now next question is, in the given figure, what does gap KT represent? State any 2 fiscal measures to correct the situation. See, now you will not always get explicit कि हमें ये बता दो या direct questions नहीं आएंगे. They will test you कि तुम्हारी कितनी accurate knowledge है. Now here in the graph they have just given you a point कि ये KT क्या explain कर रहा है, हमें बताओ. Now you can maybe consider it as deflationary gap or inflationary gap or maybe something else which you have studied. You never know what will come to your mind that time. लेकिन अगर तुमने अच्छे से डायग्राम्स पढ़े होंगे अपनी बुक से, तुम्हें पता होगा क्या चीज़ कहाँ पर दे रखी है, किस तरह से रिप्रेजेंटेड है, then you will get to know the right thing. ठीक है. यहाँ पर इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम लिख रखा है नीचे. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम शोज एन इन्फ्लेशनरी गैप, तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन करा है. In the given figure, the gap KT represents inflationary gap, AD and AS represents aggregate demand and aggregate supply. ठीक है. AD यहाँ पे समझ में आ रहा है, AS and AD. ठीक है. AD1 represents actual aggregate demand which exceeds the aggregate demand at the point of equilibrium. Equilibrium के ऊपर जा रही है actual जो आपकी AD1 है. ठीक है. So this will lead to excess demand and inflation in the economy. फिर उसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो. उन्होंने थोड़ा कम में कर रखा है बिकॉज दिस वॉज अ शॉर्टर, मतलब कम मार्क्स का क्वेश्चन था. इट इज़ अ 3 मार्कर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. ठीक है. अगर ये 6 मार्क में आता है तो आप और चीज़ें बता सकते हो कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, व्हाट कॉजेज़ एन इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. देन इट इज़ आस्क्ड हाउ कैन इट बी करेक्टेड विद 2 fiscal measures. तो उन्होंने बस मेंशन कर दिया 2 fiscal measures which can be used is increase in tax rate and reduce government expenditure. बट इसको भी थोड़ा डिटेल में लिखकर एंड थोड़े और ऑप्शन इंक्लूड करके यू कैन वेरी इजीली मेक योर 6 mark आंसर हियर. ठीक है. देन अगेन द अनदर क्वेश्चन विच आई हैव हियर इज, आई गेस दिस इज द लास्ट सेकेंड क्वेश्चन. Explain with the help of the diagram how aggregate demand and aggregate supply determine equilibrium level of income. ठीक है. अब यहाँ पर आपकी ADAS अप्रोच की बात हो रही है कि आप उसके थ्रू कैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन करते हो. सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है SI अप्रोच के लिए. ADAS मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, SI अप्रोच आप खुद से सॉल्व करके बताना क्या आंसर आपने लिखा, एंड देन उसकी भी आंसर आई विल अटैच इन द PDF. ओके. So here, according to this approach, the equilibrium level of income and employment is determined where aggregate demand is equal to the aggregate supply in economy.
वेरी इजी। इक्विलिब्रियम की बात आती है तो ये समझ जाओ कि दो चीज़ें बस ये बतानी है, ये AD इक्वल्स टू AS, ठीक है। According to Keynes, the equilibrium level of income and employment is determined where planned aggregate demand is equal to planned aggregate supply. And when AD and AS are equal, there is no tendency for output, employment or income to change. इन्होंने properly पहले explain कर दिया कि बात किस चीज़ की हो रही है, what is actually an equilibrium level of income, and वो Keynes ने कैसे define करा, and उसका outcome क्या होता है, that no employment level can be changed and no income level can be changed now. अब इन्होंने इसको एक स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू अगेन एक्सप्लेन करा है. दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टेकन इनकम एज 0, कंजम्पशन एज 25, सप्लाई एज -25. अब ये पूरा आई वोंट बी रीडिंग, बट देख लेना है पूरा स्केड्यूल, ठीक है. एंड देन इन्होंने डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दिया, AD/AS पूरा बना के इक्विलिब्रियम लेवल सेट कर दिया है. अब इसको एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने दी है इस चीज़ की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आई एम क्विकली गोइंग थ्रू दैट. In the diagram, at any level of income prior to OM, say OL. Okay. Any income prior to OM, which is OL. ठीक है, इन्होंने एक मार्क कर रखा है. AD is greater than AS. जितनी सप्लाई है उससे ज़्यादा है AD, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, ठीक है. As a result, planned inventory would fall below the desired level. Therefore, to bring the inventory back to the desired level, the producers would plan a greater output for the following year. इस बार हमने कम प्रोड्यूस करा और हमारे पास डिमांड ज़्यादा आ गई थी, अब हमें ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारे पास ज़्यादा वो हो, ठीक है. As a result of this, the level of therefore to bring the inventory back, now they will produce more. As a result of this, the level of income, employment and output will increase in the economy. This process will continue till the equilibrium is reached, that is point E, जहाँ पर AD is equal to AS, ठीक है, OM पर basically. The process thus when AD is greater than AS, national income tends to increase, क्योंकि वहाँ पर आपके पास सप्लाई आपने कम सोची कि यार लोग अभी नहीं खरीदेंगे, बट लोगों ने डिमांड करी उस चीज़ की. नाउ टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री बैक आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी. At any level of income beyond OM, say ON, look at the diagram, aggregate supply is greater than aggregate demand. अब supply ज़्यादा हो गई, इतनी demand आ ही नहीं रही है, so inventory will go waste. AD curve lies below the 45-degree line. This means that the consumers and producers would be buying less goods than the producers are willing to produce. वो produce ज़्यादा कर सकते हैं, but उतनी demand ही नहीं है, वो कम खरीद रहे हैं. As a result, it would rise above the desired level, and therefore to bring it back to the desired level again, अब आपको नेक्स्ट ईयर का करना पड़ेगा, कम आउटपुट प्लान करना पड़ेगा, कम रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट विल डिक्रीज इन द इकोनॉमी, क्योंकि वो अब नेक्स्ट ईयर कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कम लोग एम्प्लॉय करेंगे, कम आउटपुट लाएंगे एंड इकोनॉमिक इनकम भी कम होगी, ठीक है. This process will continue till again equilibrium is reached, and then at point E where AD is equals to ES, equilibrium restore हो जाएगा. So when AD is less than AS, national income tends to fall. इन्होंने दोनों केसेस एक्सप्लेन कर दी कि AD अगर ज़्यादा है तो आप उसको कैसे इक्विलिब्रियम में रिस्टोर करते हो, कि डिमांड ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर प्लान मोर, जिसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम राइज होती है एंड देन आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट बढ़ जाता है. एंड देन इफ सप्लाई इज मोर, देन उसको वापस से कैसे रिस्टोर करोगे, पीछे कैसे लाओगे, बाय प्लानिंग लेसर प्रोड्यूस नेक्स्ट ईयर, एंड देन उससे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इनकम सब कुछ कम हो जाएगी, तो नेशनल इनकम टेंड्स टू फॉल एट दैट टाइम, ठीक है. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव हियर इज अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस व्हाट विल बी द फाइनल चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है. चेंज इन इनकम लीड्स टू अ चेंज इन कंजम्पशन विच इन टर्न्स लीड टू मल्टीपल चेंजेस इन इनकम, ठीक है. चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ तो चेंज इन इनकम हुई, फिर चेंज इन कंजम्पशन हुई, देन अगेन चेंज इन इनकम हुआ, ठीक है. तो अभी आपको एक डायग्राम दे दिया इन्होंने अबाउट हाउ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क्स, बट इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन करा है थ्रू एन एग्जाम्पल. Suppose government invests 100 crores for construction of roads, dams, flyovers, bridges, etc. Assuming MPC to be 0.5, due to this investment expenditure by the government, the income of the construction industry will increase by 100 crore.
क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर MPC है 0.5, तो यहाँ पर 100 करोड़ से आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है। Now, people of the construction industry will spend 50% of their additional income on the purchase of consumer goods and services. तो consumption बढ़ जाएगी. Due to this, income of consumer good industry will also increase by 50 crores. Now, the people working in the consumer good industry then again will spend their additional income on the purchase of other goods and services. And due to this, बाकी industries की 25 crores around से income बढ़ेगी. Now, the people working in their industry will spend 50% of their additional income in again purchase of some goods and services. So this is how it moves on increasing. Thus, change in investment causes a change in income. As a result, there is a change in consumption, which in turn leads to a multiple changes in income. तो अब इन्होंने इसको through a table also explain किया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज़ इन्वेस्टमेंट और इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम 100 लिया है, ठीक है। तो चेंज इन कंजम्पशन 50 आया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट शोज दैट इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, देयर इज अ टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑफ 200 करोड़, ठीक है। 100 का इंक्रीज 200 पे ले आया। इसको अगर हम सिंपली देखें तो मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम कितना हुआ 200, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100, सो 2 आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। सो या दिस इज इट, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स, दिस इज हाउ यू कंक्लूड योर आंसर्स, दिस इज हाउ यू इंक्लूड डायग्राम्स एंड give a structure to your answer. So I hope this helped you, and now you will know how do you actually follow a particular sequence in your answers and कैसे उसे अच्छे से present करना है. And let me know what else do you want a video about. I'll surely make it, and all the best for your exam. Prepare well, you will do amazing. Bye bye, I'll see you in my next videos.